Hi, Amir. This is Bhakti this Simrata side. from Filmy Curry, towards your left. Towards your left. I have two questions for you. Yeah. The film is about the father and his 4 daughters and how he trains his 2 daughters to be wrestling champions. So how was it working with the 4 girls? This is my first question. Oh, that was outstanding. I really loved working with him. जब आप फिल्म देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देख के आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे. जो 4 लड़कियों ने काम किया है, अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल. मतलब ये अपनी पहली फिल्म कर रही हैं. मैं कुछ 40 फिल्में कर चुका हूँ. मैं पिछले 25-27 साल से काम कर रहा हूँ. लेकिन जिस एफर्टलेस तरीके से वो शॉट देती थी, मैं देख के हैरान हो जाता था कि यार ये पहली फिल्म कर रही हैं अपनी. सो आई एम सो प्राउड ऑफ देम. And you know, the young kids of today are so focused, so hardworking. All 4 of them are really hardworking. And this was a very difficult film for them to do because all of them have to run wrestling. Wrestling is a very tough sport. आपकी body में injuries होती हैं. So for example, Fatima, in the earlier part of her wrestling, only she injured her rib. And she had to do the whole 1 year of shooting and the wrestling rehearsals with that broken rib. Because rib का कोई fracture अपना कोई cast वास्ट नहीं होता. You have to just allow it to heal. So they had to really push their own limits, their physical limits. फिर हरियाणवी की डायलेक्ट सीखना है. तो आई थिंक ऑल ऑफ देम, एक्चुअली इंजरी तो सभी को हुई, मुझे भी हुई इंजरीज. फातिमा, सानिया, अपना सुहानी एंड जायरा. बट ऑल 4 of them, you know. Suhani is the little darling because she's the smallest. We all really love her. And Zaira is very, very talented. She's a wonderfully talented young girl. Sania is my favorite, I have to say. My heart goes out to her. Yeah. She's someone I just emotionally connect probably maximum with Sania. And then there's Fatima, who's done a fantastic job. She's a very talented actor. I mean, all 4 are very talented, I have to say. All 4, there's no difference. And all 4 have applied themselves completely. Whatever I say is less about them. Also, the tagline of the film, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? It's 2016. Don't you think we just have to live it to the answer कि कम नहीं है? Asking it again and again कि कम है. We are just nullifying the fact कि हाँ कम नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं होएगा. आप फिल्म देखिए. Trust us. Amir, Trust us. Amir, Any particular दो दिन reason के to बाद- launch this poster 2 Amir, days before Sultan? Amir here, Where? left. कहाँ है? Any particular हाँ, reason हाँ. to launch the poster 2 days before the release of Oh Sultan? yes, because Sultan is going to be a huge super duper hit here. And all the millions of people who come to see Sultan, I want them to see this poster outside in the theater के भाई हमारी भी आ रही है बाद में. तो that's the reason. इतनी बड़ी बम्पर हिट होने वाली है, उसकी ओपनिंग कुछ बिजार लगने वाली है. तो जो लाखों लोग आएंगे थिएटर में, तो हम थिएटर में हम कम से कम एक कोने में तो खड़े हो जाएं भाई. हम भी हैं. 6 महीने बाद हम भी आ रहे हैं. And So Amir, we are using the huge potential that Sultan has to propel our film. Amir, you just said that one of your trainer left you in between. I believe Rakesh. Rakesh. For Bhai. Yeah, So yeah. did you not feel offended? No, about it? no. I didn't feel offended. No, because see, the thing is that I know that Rakesh regularly trains Salman, first of all. He regularly trains Salman and has been doing it for many years. So I'm actually a new person that Rakesh is training. So I don't feel that. And at the end of the day, that, you know, Salman is used to him, Salman trains with him, has been training with him for 10-15 years, I don't know how many years. तो वो बात मैं समझता हूँ. और मैं अक्सर राकेश को बोलता हूँ, कभी कभी हमारा टाइमिंग क्लैश होगा, उसकी शूटिंग है, मेरी शूटिंग है, तो आप सलमान को प्रेफरेंस दो, मैं मैनेज कर लूँगा. That's my understanding with Rakesh also, from the very beginning. And during a recent interview, Salman said that for 20 days he had to do the fit bit, then he had to do the unfit bit, and then again he had to loosen his weight and then increase the weight and all, you know. And he said कि आमिर का अच्छा था, उसने तो 6 महीने में कर लिया. तो what do you want to say? वो बोला ये सब changes करना हलवा नहीं होता है. He is absolutely right that it's very difficult to do that. It's very challenging, and I can understand because I've been through it, and I know he's been through it. So it's really something that is very challenging, and hats off to what he's done here. Hi, Abhishek here, straight.
आपने कहा सलमान आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, लेकिन ऑफ लेट हम उनकी और शाहरुख की बॉन्डिंग काफ़ी देख रहे हैं। रिसेंटली वो लोग साइकिलिंग करते हुए भी देखे गए थे। तो क्या आप काफ़ी बिजी चल रहे हैं जो आपके वो नहीं देखा गया साथ में? मतलब आपको क्या लगता है कि एक दफा मेरी दोस्ती होगी किसी के साथ और किसी से दोस्ती अब नहीं हो सकती? मुझे धोखा मत देना, किसी और का दोस्त बनना मत। ऐसा थोड़ी होता है भाई। I'm very happy to know that Salman and Shah Rukh are spending time together. They went out cycling. They are, chilling together. That's wonderful. It's really wonderful. Okay, Amir sir, when we see biopics towards your left, when we see biopics being made on people who are alive, the makers usually bring them towards when they promote the film. Do you have plans to do the same? Yes, yes. Of course, we would like you to speak to them. We would like to introduce them to all of you. At the right time, we'll be doing that. Amir, the film shows, Amir over here, the film shows woman encouragement in sports. Yeah. Sorry. What? The film shows encouragement of women in sports, as is wrestling. So do you think in India there's lack of encouragement for women in sports and it should be increased? I think that जो patriarchal thinking है हमारे समाज में, वो हर चीज़ में affect करती है। स्पोर्ट्स में affect करती है। आप बच्चियों को मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो हम बच्चियों को पैदा नहीं होने देते, कोक में ही हम मार देते हैं। फीमेल फीटिसाइड कितना होता है हमारे यहाँ? तो एक तो हम उनको पैदा नहीं होने देते। अगर वो पैदा हो गए तो हम उनको वही शिक्षा जो हम अपने बेटे को दे रहे हैं वो नहीं देते। मैं हर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल चीज़ बोल रहा हूँ। अक्सर ये हमने देखा है कि फिर बच्चियों को सही एजुकेशन नहीं मिलता, उस पर हम एजुकेशन पे खर्च नहीं करते, उसके हेल्थ पे हम खर्च नहीं करते, हम कम खर्च करते हैं। पहले लड़के को खिलाओ भाई, दूध है तो उसको पिलाओ। तो ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं हमारे समाज में, हर घर में ऐसा नहीं होता। मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी 2 बहनें हैं, हम 2 भाई हैं और हमें हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट मिला है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है। तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारे समाज में ये सोच है और कोशिश हम सबकी यही हो कि हम इस सोच को धीरे धीरे लोगों के दिल में से उस सोच को बदलें। और अल्टीमेटली जब लोगों का दिल बदलेगा, जब उनके जज्बात बदलेंगे, तभी ये बात बदलेगी। Amir here. Amir here, slightly towards here. Amir, when you said that poster आप कोने में रखना चाहेंगे सुल्तान के रिलीज पर so that people would also see it, are you implying the fact that Salman is today a bigger star than you? He's always been a bigger star than me. इसमें नहीं क्या बात है? I've always considered Salman a bigger star. I've always considered Shah Rukh a bigger star. I've always considered Amit ji a bigger star. And there are a host of stars who I feel are very, very huge in India. There's Hrithik, there's Ajay Devgan, there's Ranveer, so many actors who are hugely popular. It's very difficult to compare कौन आगे कौन पीछे, वो उस comparison में जाता नहीं. But I do feel that when I see Salman walking into a room, ऐसा लगता है कि स्टार आया यार. मैं एंटर मारता हूँ तो लगता है कि कोई वेटर आ गया. Sorry, I'm sorry, I shouldn't say that because waiters are great people. कहाँ हैं भाई waiters? I shouldn't say that. But I feel that when I walk into a room, I feel कि कोई nobody आया है. मैं चुपके से कॉर्नर में एंटर होता हूँ और जाके खड़ा हो जाता हूँ. It's Salman who enters Shah Rukh. When Shah Rukh enters, you feel a star has entered. वो क्वालिटी है ही नहीं मेरे में. So to answer your question, yes, they are both bigger stars than me. आमिर एक सवाल है आपसे. अभी अभी आपने कहा कि जो लड़कियां हैं वो पेट में ही मार दी जाती हैं या उनको ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलता है, और हरियाणा तो इस मामले में सबसे नंबर 1 पोजीशन में है हमारे देश में. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए भी जिस तरह से आपने अतिथि देवो भव और ऐसे ढेर सारे कैंपेन किए हैं, सत्यमेव जयते में भी कहा है, वैसे इसके लिए भी आपको एक अलग से प्रयास करना चाहिए? और दूसरी बात कि आप यही तो हमारा प्रयास है जी, ये जो फिल्म हमने बनाई है, ये सबसे बड़ा प्रयास है. आप देखिए तारे ज़मीन पर का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है देश भर के बच्चों में, देश भर के पेरेंट्स में. 3 इडियट्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है एजुकेशन पे. तो मेरे समझ से यही तो हमने 2 साल जो लगाए, मैंने 2 साल लगाए, नितेश जी ने 4 साल लगाए, यही तो हम कर रहे हैं, यही तो हमारी कोशिश है. और आपकी बेटी भी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेती है, तो आप उसको किस तरह से? आयरा का इंटरेस्ट है बहुत स्पोर्ट्स में, एंड शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, शी इंटरेस्टेड इन डिफरेंट थिंग्स, एंड बोथ रीना एंड आई एंड किरण, वी इनकरेज आवर किड्स टू डू व्हाट makes them happy and to learn about things that they are interested in always. आमिर सर, yeah. आमिर, अक्सर ऐसा होता है कि जब बायोपिक बनती है बॉलीवुड में खासकर, तो जिस पर बायोपिक बन रही होती है उसे थोड़ा हम ग्लोरीफाई करते हैं,
ऐसा पॉसिबल लाजमी है कि किसी भी हीरोज़ में भी फ्लॉज होते हैं, लेकिन बॉलीवुड में अक्सर ग्लोरीफाई किया जाता है। तो क्या इस फिल्म में महावीर जी के नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी फोकस किया जाएगा, या ऐसी कोई इसे ग्लोरीफाई नहीं करने की कोशिश, आप क्या कहेंगे इस पे? आई थिंक नीतीश जी इस आंसर को बेटर जवाब दे पाएंगे, बिकॉज दो मेरे मन में भी जवाब है, लेकिन आप राइटर डायरेक्टर हैं, आप बताइए। एक्चुअली इसमें इतना ग्लोरीफाई करने की हमने कोई चेष्टा नहीं करी है। इस फिल्म में जितना रियल रख सकते हैं हम लोग उतना ही रियल रखने की कोशिश की है। इनफैक्ट महावीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो भी एकदम क्लोज टू बीइंग परफेक्ट नहीं है। एक वक्त है महावीर सिंह की लाइफ में जब उसे बेटा चाहिए, और बेटे की चाहत में ही 4 लड़कियां होती हैं उनको। तो ऐसा नहीं है कि उनका जो कैरेक्टर है वो एकदम परफेक्ट है, बट फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है और क्या होता है वो अभी मैं बता दूंगा, तो फिर इतना कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। बट यस ऐसा कुछ अननेसेसरीली और अनरीजनेबली ग्लोरीफाई करने की ऐसी कुछ खास प्रयास तो नहीं है। आमिर, आपसे सवाल है। आमिर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये चौथी स्पोर्ट्स फिल्म है आपकी। अव्वल नंबर आपने की थी देवानंद के साथ, और उसके बाद जो जीता सिकंदर, फिर लगान की, और ये चौथी फिल्म है जी दंगल। तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड में स्पोर्ट्स जो जॉनर है वो कितना इवॉल्व हुआ है? आपको क्या लगता है इस बारे में? यकीनन लगान से अगर हम देखें, जो 2000 में आई थी, 2001 में आई थी, तब से, क्योंकि उससे पहले कोई फिल्म स्पोर्ट्स फिल्म वर्क नहीं हुई थी। लगान से पहले कई बनी थी, कामयाब नहीं हुई थी, जो जहाँ तक मुझे याद है। तो लगान पहली फिल्म थी जो स्पोर्ट्स फिल्म थी, जो बहुत बड़ी कामयाब हुई थी। और उसके बाद लगातार कई फिल्में आई। चक दे इंडिया आई जो स्पोर्ट्स पे थी, और भी कई फिल्में आई हैं जो बहुत कामयाब हुई हैं। तो यकीनन वो सिलसिला शुरू हुआ है, स्पोर्ट्स फिल्में अब बनने लगी हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स पे बनती हैं। बॉक्सिंग पे है, हॉकी पे है, क्रिकेट पे है, फुटबॉल पे, शायद फुटबॉल पे भी एक बनी है। तो इट्स गुड टू हैव डिफरेंट जॉनर्स। Last question, please. Last question. मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपकी जो वाइफ बनी है साक्षी तंवर, उनकी कास्टिंग प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहेंगे आप दोनों से। और इसके लिए मल्लिका शेरावत ने भी ऑडिशन दिया था, उन्होंने खुद ट्वीट किया था इस बारे में। हाँ, नहीं देखिए ऑडिशंस तो हम कई लोगों के लेते हैं, और उसके बारे में हम बात नहीं करते किसका हमने ऑडिशन लिया है, वो सही नहीं होता। लेकिन साक्षी जी के बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि एक्चुअली साक्षी जी का थॉट मेरे माइंड में पहले आया, और मैंने नीतीश जी को सजेस्ट किया कि शुड वी ट्राई साक्षी जी, शुड वी टेस्ट हर। क्योंकि मेरे माइंड में थी कि मेरी अम्मी जो है वो टीवी सीरियल्स बहुत देखती हैं, एंड शी लव्स साक्षी। तो आई टोल्ड नीतीश जी कि यार लेट्स ट्राई हर। एंड नीतीश जी ने टेस्ट लिया, नीतीश जी को पसंद आया टेस्ट, एंड दैट्स हाउ शी वाज कास्ट। एंड शी इज़ फैंटास्टिक, आई टेल यू। मतलब तब तक तो सिर्फ कास्टिंग की बात थी, जब हमने शूटिंग पे हम आए तो साक्षी इज सच अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, अनबिलीवेबल। मतलब वो एक टेक पे परफेक्ट टेक देती है, पहले टेक में। और नॉट ओनली शी इज स्किल्ड, बट शी इज सो वेट विथ इमोशंस, सो देयर इज अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ रियल स्किल विथ फीलिंग द शॉट while you're doing it, which I find that very rare, and every shot she does that. मतलब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और वो ढम 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 बॉल को सिक्सर मार रही है। मुझे लग रहे हैं 7 टेक 8 टेक। शी इज फैंटास्टिक, आई जस्ट लव्ड हर, एंड शी इज सच अ जॉय टू वर्क विथ, रियली वंडरफुल टू वर्क विथ। हाँ, नहीं नाम तो मैंने सोचे नहीं थे उस वक्त लेकिन ये थॉट मुझे अक्सर आता है हर फिल्म में। मैं बताऊं आपको, हर फिल्म जब आखिर तक पहुंचती है तो मुझे लगता है अरे यार अभी 1 हफ्ता रह गया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी पूरी जो मेहनत है 90 दिन की शूटिंग, वो सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं 7 दिन पहले मर गया या कुछ हो गया। ये थॉट मुझे हमेशा आता है। अच्छा, थॉट इसलिए आता है कि मैं सोचता हूँ कि प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं अपन उसको सॉल्व करने के लिए। तो मतलब कर तो कुछ नहीं सकते, ऊपर वाले के हाथ में, जो होना है वो होगा। लेकिन इस फिल्म में मैंने नीतीश जी को एक पॉइंट पे बोला, वही उदय, यू आर नॉट देयर। तो मैंने नीतीश जी को बोला कि देखिए नीतीश जी, मेरा मोटा पोर्शन जो है ना 80% जो फिल्म है वो तो हो चुकी है,
अब बची है 10-15% जो अपना यंगस्टर की है। खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो आप किसी और को कास्ट कर लेना जो मेरा महावीर का यंग पार्ट करेगा, लेकिन अपना जो 80% बना है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मैं अब कहाँ सोच रहा, मैंने सोचा भी नहीं था। आपने सोचा? नहीं सर। नहीं सोचा आपने, चलिए अच्छी बात है, आपने नहीं सोचा। Sorry? When is the trailer expected? You know, we are still working on the trailer. So as soon as we are ready. I can't say yet when. When am I planning to watch Sultan? The moment it comes in the theaters. Yeah, 6th July. Hopefully I'll see 6th soon enough. कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। Thank you so much everyone. Thank you so much.